234. Now two partner insolvency, okay? सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी करते थे वही लाइंस पे है, ओके? पेज नंबर 234, standard textbook. Along with the problem only I'll explain. Only one point is different between single partner insolvency and double partner insolvency. Same concept, same logic. Page 234, standard textbook. Question 1. Sure. Sharing the screen. Draw the columns. Page 234. We're going to do 3 problems, all based on two partner insolvency. See, some number 1, page 234. Narendra, Devendra, and Mahendra. 3 partner sum. Draw the columns. Narendra, Mahendra, and Devendra. There is no loan account. And there is bank account. See. Let's begin. पूरा प्रोसेस सेम है, खाली एंड में जो इंसॉल्वेंसी पार्ट है उधर थोड़ा ध्यान रखना है. ओके, दैट इज आल्सो सिंपल ओनली. फर्स्ट स्टेप, एम्प्टी द बैलेंस शीट. Page 234. Empty the balance sheet to start with capitals. So buy balance brought down. Buy balance brought down. Okay. 20, 80, and 40,000. 20, 80, and 40,000. Okay.
no reserves, no accumulated loss. Go to bank, mention the opening balance to balance BD 10,000, to balance brought down 10,000 in bank. Okay, the remaining assets, you transfer them to realization as to sundry assets. Having just 4. Plant, car, debtors and stock. So plant and machine is 1 lakh. Motor car is 20,000. Sir, 6 sum. First sum, page 234, standard textbook. 90,000. And stock is 120. So 3,30,000, right? Okay. And only one liability we are having, that is creditors. The problem is very simple, focused mainly on two partner insolvency. There are no other complications. 2 lakh rupees. Couple of 4 liabilities we are having, 4 assets we are having, 1 liability, that's it. Empty the balance sheet ka part is done. Let's move to the adjustment. What is the next step, guys? After emptying the balance sheet, what do you do normally? Decided to dissolve the partnership. So what are we supposed to do? Supposed to sell out the assets, right? So what entry we pass? Bank to realization. So buy bank, start selling the assets. Machinery and stock are sold for 50 and 36 respectively. Machinery is sold for 50,000 and stock is sold for 36,000, right? Got it. Then debtors realized 40,000. Let us say 40,000 आ गया. Car is taken over, realization expenses दिया हुआ है. ठीक है, I shut it down. I get the total as 126,000. 90 plus 36. Corresponding entry will be buy bank का बैंक में to realization. 126,000. Then one of the assets has been taken over. Motor car was taken over by Devendra. So what entry we pass for car taken over by Devendra? Devendra Cap to realization. By Devendra Cap. It's Devendra Cap to realization. Now simple entry. Says motor car is taking it away from the business. At what price? 26,000. 26,000 में गाड़ी लेके गया. ये बिजनेस का लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, सॉरी 6,000 का अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा. बाय देवेंद्र कैप का करस्पॉन्डिंग एंट्री देवेंद्र कैपिटल में आ जाएगा टू रियलाइजेशन 26,000. 26 में लेके गया, उसको 26,000 कम देगा बिजनेस.
बिजनेस को तो पैसा आने से मतलब है, बराबर है। Realization expenses amounted to 2000 rupees. So on the liability part now, asset part is taken care of. Let's pay off liabilities. Paying off the liabilities में entry क्या होगा आपका? Realization to bank. Normally it is liability to bank, इधर realization to bank. Okay, सभी के सभी liabilities बंद होके realization में जा चुकी हैं. अभी फर्क नहीं पड़ता चाहे recorded हो या unrecorded हो. Realization to bank में सबसे पहला we try to pay off realization expense. याद आया तो अच्छी बात है, आगे पीछे हो गया टेंशन मत लो, ऑल पार्टनर यहाँ पे इंसॉल्वेंट नहीं हुए, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट है, 1 सॉल्वेंट है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 2000। आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? deficiency of any partner in the capital account is to be met by the other partners in the PSR. Narendra became insolvent and Mahindra could bring only 10,000 rupees. Okay. So they haven't talked anything about these creditors. What do we assume in such a situation? Creditors के बारे में कुछ information नहीं दिया आपने को. What are we supposed to do? I think we are supposed to paid off at book value. pay them off at book value. So creditors भी हमने pay off कर देने हैं. That is 2 lakh rupees, and the total value is 2,02,000. Realization में to bank, and bank में आएगा by realization. Bank में आएगा by realization 2,02,000 rupees, right? So till now the problem was very simple sort. We emptied the balance sheet, we sold off the asset, one of the asset was taken over, we paid off the liabilities including the creditors. I think the asset liability part has been taken care of. There is nothing related to partners loan, so we can find out our profit or loss. So you can simply calculate and tell me what is the profit or loss. 5,32,000 is the 5,32,000 is the total, I think. Please check. 532 minus 2, 3, 26, 352. 1,80,000. 1,80,000. 1,80,000 का loss. Can you all see that? By partners capital. तो पूरा normal sum कर रहा हूँ मैं, बहुत चिंदी सा sum है. बैलेंस शीट एम्प्टी की, एसेट बेचा, एसेट टेक ओवर किया, लाइबिलिटी पे ऑफ किया, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ. 3 पार्टनर्स हैं, दैट इज नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र. गो इन द सेम ऑर्डर. नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र कैप. And what's your profit sharing ratio between them? 3:3:2. 3:3:2 में आप डिवाइड कर लो ये लॉस रियलाइजेशन को. No, what is the answer? Divide by 8 करना into 3. 67,500. 67,500, 67,500 and 45,000. 45,000. 67,500, 67,500 and 45,000. Okay. So by partner capital का हो जाएगा to realization 67,500, 67,500 and 45,000. 45,000. Sir, Yep. आपने महेंद्र और देवेंद्र का बैलेंस शायद उल्टा लिखा है. देवेंद्र का 80 है. नरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र. नरेंद्र, अच्छा नीचे उल्टा है. ओके ओके. तो नरेंद्र यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 80 है. वेरी गुड. ये ध्यान रखना जरा, कल भी हमने एक प्रॉब्लम में किया था. ऊपर ऑर्डर और नीचे ऑर्डर अलग हो सकता है. बी अलर्ट. ऊपर नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र था, नीचे नरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र था. सॉरी, ऊपर उल्टा था, नीचे नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र था. तो सर ऊपर वाला फॉलो करने का.
पीएसआर के लिए ऊपर वाला ही देखने का, पीएसआर के लिए ऊपर वाला ही देखना। नरेंद्र देवेंद्र महेंद्र ही है। नरेंद्र देवेंद्र महेंद्र ऊपर है ना, नीचे देखो ना, नीचे नीचे भी नीचे भी। हाँ तो मैंने नाम अलग लिखा है, सॉरी। ओके माय बैड, सॉरी, मैंने कैपिटल में ऑर्डर गलत लिखा है। हाँ सर रियलाइजेशन का अमाउंट भी चेंज होगा। नरेंद्र देवेंद्र महेंद्र है ना यार, हाँ तो 67। देवेंद्र का 67,500 है। अरे यार मैं 1 मिनट, नाम ही चेंज कर दे। तुम लोग ने बराबर लिखा ना, नरेंद्र देवेंद्र महेंद्र। हाँ ठीक है, मैं नाम चेंज कर देता हूँ, नरेंद्र देवेंद्र महेंद्र। सर जर्नल है। नो जर्नल, नो जर्नल। और ये कैपिटल्स हो जाएगा अभी आपका यहाँ पे, नरेंद्र महेंद्र वेयर 20 80 40। अब बराबर है, नरेंद्र देवेंद्र महेंद्र 67 67 45 20 80 40। क्लियर है? बोलो यहां तक कोई डाउट? दिस वाज अ सिंपल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट, नो इश्यूज, राइट? Now, instead of one partner, there are two partners who are becoming insolvent. So, in such a situation, practically क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर ऑर्डर में जाते हैं हम लोग, ओके, कोई पार्टनर पहले आ गया, वो बोला मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मेरे पास घर पे पैसे नहीं है, मेरी सिचुएशन खराब हो गई, हम बोलेंगे आ जा, इंसॉल्वेंसी का पार्ट खत्म करते हैं। फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, जैसे ऑर्डर में आते हैं हम लोग उनको लेते जाते हैं इंसॉल्वेंसी। तरीका बहुत सेम है, पूरा डिट्टो है। जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस है, that will be shared by the solvent partners in the PSR. Same fundamental principle we are going to apply, ठीक है? या फिर ऐसा जनरली होता नहीं कि डिसोल्यूशन प्रोसेस में एक एक महीने के बाद आपको पता चले कि भैया ये टपक गया, ये इंसॉल्वेंट हो गया, ये उठ गया। ऐसा अलग अलग नहीं होता है, आपको पता चल जाता है कि भैया उठ गए पार्टी सब। तो जो जो उठ गया उसका मैक्सिमम लॉस वाले बंदे को हम जनरली पहले कंसिडर करते हैं, फिर कम लॉस वाले को सेकेंडरी, फिर उससे कम लॉस वाले को थर्ड, और वैसा करते हैं। बट अभी आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर डूइंग द प्रॉब्लम, अभी आप जो कर रहे हो 12th स्टैंडर्ड में, आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया होगा, तो गो इन द ऑर्डर ऑफ द प्रॉब्लम, गो इन द ऑर्डर ऑफ द प्रॉब्लम, सिंपल एज दैट, ठीक है? तो प्रॉब्लम में जो पहले इंसॉल्वेंट हुआ उसको पकड़ो, सिंपल एज दैट, ओके? तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि किसका लॉस है, क्या है, जस्ट लुक इन द ऑर्डर ऑफ द प्रॉब्लम। नरेंद्र becomes insolvent and Mahendra could bring 10,000 only. तो पहले कौन insolvent हो रहा है यहाँ पे? Who is becoming insolvent? नरेंद्र। Narendra is becoming insolvent. All of you got that? तो पहले नरेंद्र को उठाते हैं हम लोग. We'll make Narendra insolvent, finish of the insolvency proceedings. Tell सर me. ये टू रियलाइजेशन 26 देवेंद्र में आएगा। एक मिनट, कौन टेक ओवर किया है? सर आपने नाम चेंज किया था ना बाद में। हाँ, बराबर, ठीक है। अभी कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है सबसे पहला, चेक करो। Who is getting insolvent? नरेंद्र। तो लेट्स फिनिश ऑफ द प्रोसेस ऑफ नरेंद्र फर्स्ट। नरेंद्र का प्रोसेस खत्म करना है। वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम नरेंद्र। जैसे सिंगल पार्टनर करते थे डिट्टो वैसे कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। कैसे ढूंढते थे हम लोग अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम नरेंद्र? इट वाज सिंपली डेबिट माइनस क्रेडिट, राइट? से कितना पैसा लेना है? डेबिट माइनस क्रेडिट। देखो यहाँ पे डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो 67,500 माइनस 20,000। कैन यू ऑल सी दैट? 67,500 माइनस 20,000, 67,500 minus 20,000, that comes to how much? 47,500। इतना पैसा लेना है, बहुत सिंपल सी चीज है। फिर चेक करना है क्या नरेंद्र कुछ ला पाया, पर्सनल एस्टेट से कुछ ला पाया? Was Narendra able to get anything from the personal estate? Please check, 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 check.
नथिंग। सो कुछ भी नहीं ला पाया। सो बाय बैंक वाली एंट्री का लफड़ा नहीं है, बैंक टू नरेंद्र कैपिटल कुछ भी नहीं आएगा, नो पार्ट पेमेंट रिसीव। तो यही उसकी नेट डेफिशिएंसी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नरेंद्र ब्रिंग्स या नरेंद्र गेट्स नील। कुछ नहीं लाया, खाली खम है, पर्सनल एस्टेट में कोई पैसे नहीं है, तो दीज आर द नेट डेफिशिएंसी ऑफ नरेंद्र। This is the net deficiency of Narendra, which will be shared by both Mahendra and Devendra in PSR, which will be shared by Mahendra and Devendra in profit sharing ratio. Now, can you guys tell me what is the profit sharing ratio between Mahendra and Devendra? 2:3. महेंद्र और देवेंद्र का PSR क्या है? 2:3. 2:3 है। Can you all see that? मिला? महेंद्र एंड देवेंद्र या देवेंद्र एंड महेंद्र, जैसे लिखना है वैसे लिखो। It will be shared by Mahendra and Devendra in the ratio of 2:3. So kindly divide this 47,500 in the ratio of 2:3. 19,000. And 28,500. 28,500. What is the entry for this, guys? What is the journal entry for this? Solvent to insolvent. सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट। तो फिलहाल सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट में क्या कंसिडर करने का? वो आर द सॉल्वेंट पार्टनर्स महेंद्र एंड देवेंद्र। देखो अपने को एक साथ नहीं बोला है, एक एक ऑर्डर में जा रहे हैं हम लोग। तो फिलहाल महेंद्र देवेंद्र सॉल्वेंट है, ओके। उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे, देखेंगे, आगे जाएंगे, पता चलेगा दूसरा भी इंसॉल्वेंट हो गया। तो जो ऑर्डर में दिया वही ऑर्डर में जाओ। तो पहला महेंद्र देवेंद्र टू सर वो नरेंद्र। आगे जाके एक और पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो वो खुद का पैसा नहीं भर सकता, वो दूसरे का भर रहा है। नहीं भर रहा है, भर कहाँ रहा है? यहाँ पे तो कैपिटल की एंट्री हो रही है। हाँ भरने तो के सर बाद वो नरेंद्र की जगह वो जो भी इंसॉल्वेंट हो रहा है दूसरा पार्टनर वो पैसा दे रहा है, पर दे वो नहीं रहा है, खुद दे नहीं के रहा है, लिए। दे नहीं रहा है। We are just making the change in capital right now. हम लोग बता रहे हैं कि भैया इससे नरेंद्र से, ये देखो दूसरा कौन इंसॉल्वेंट हुआ है? आई थिंक नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया और महेंद्र हो रहा है। तो फिलहाल महेंद्र का कैपिटल डेबिट कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि इतना पैसा इसको लाना है घर से टू शेयर द डेफिशिएंसी। गॉट इट? ला नहीं रहा, जब जाने की बात आएगी तब पता चलेगा भैया ये भी कंगाल, इसका भी इंसॉल्वेंसी। समझ में आई बात? तो फिलहाल जो ऑर्डर में जा रहे हैं, फिलहाल महेंद्र समझो इंसॉल्वेंट था, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कैसे दिया है कि एक एक महीने के बाद आ रहे हैं पार्टनर। पहले एक पार्टनर आया, नरेंद्र आया, बोला मैं इंसॉल्वेंट, चलो खत्म करते हैं। फिर हमें पता चला कि महेंद्र भी इंसॉल्वेंट, चलो उसको खत्म करते हैं। ऐसे हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली तो दोनों पार्टनर साथ में आ जाएंगे, बोलेंगे हम कंगाल है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो चुपचाप बेचारा वो देवेंद्र जो है सॉल्वेंट पार्टनर डायरेक्टली दोनों के डेफिसिट शेयर कर देगा डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे आपको वैसा नहीं है, डायरेक्टली नहीं। ऑर्डर जैसा है वैसे फॉलो। इसलिए मैंने बोला थोड़ा गलत तरीके से दिया, बट ठीक है तो करना। आने का चांसेस कम है बहुत, खाली प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं टू पार्टनर का, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है? पहले खाली नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो रहा है। यहाँ पे पहले खाली नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो रहा है, उसका डेफिसिट शेयर करवा दो दोनों। फिर देखते हैं आगे कोई और इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसको भी उठा देते हैं हम लोग सेम तरीके से। सो दिस इज नरेंद्र में 47,500, महेंद्र में 19,000, देवेंद्र में 28,500। महेंद्र टू देवेंद्र, महेंद्र टू नरेंद्र। पहला महेंद्र टू नरेंद्र 19,000, महेंद्र टू नरेंद्र। तो महेंद्र में टू नरेंद्र, महेंद्र में टू नरेंद्र और नरेंद्र कैप में बाय महेंद्र कैप 19,000। महेंद्र टू नरेंद्र,
19. देवेंद्र टू नरेंद्र 28,500. देवेंद्र टू नरेंद्र, देवेंद्र में टू नरेंद्र 28,500. देवेंद्र कैप में टू नरेंद्र कैप 28,500. नरेंद्र कैप में बाय देवेंद्र कैप 28,500. 28,500. Is that clear? Comfortable? So ये हमने पहले वाले पार्टनर की जो इंसॉल्वेंसी थी खत्म कर दी है. कौन उठा था सबसे पहला? आई थिंक नरेंद्र उठ गया था. तो नरेंद्र का कैपिटल विल सेल्फ टैली क्योंकि हमने उसकी डेफिसिट शेयर करवा दी है. दिस विल बी 64,000 टैलिंग अमाउंट. स्टोरी ओवर. सर नरेंद्र है 67,500. 60. आपने महेंद्र का किया है. क्या कर रहा हूँ यार. कौन उठ गया है? नरेंद्र उठ गया है ना. तो नरेंद्र का टोटल करो. नरेंद्र 67,500. 67,500 नरेंद्र अकाउंट विल सेल्फ टैली. ठीक है. नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया, उसका अकाउंट सबसे पहले खत्म कर दिया हमने. एंट्रीज क्लियर है यहां तक? नरेंद्र वॉज इंसॉल्वेंट, डेबिट माइनस क्रेडिट किया, जो पैसा नहीं आया दैट वाज शेयर्ड बाय अदर टू पार्टनर्स इन द पीएसआर. नाउ आगे जाके पता चला कि कौन दो बचे हुए हैं अभी? देवेंद्र एंड महेंद्र बचे हुए हैं. देवेंद्र एंड महेंद्र बचे हुए हैं. तो देवेंद्र महेंद्र में पता चला है कि महेंद्र कुड ओनली ब्रिंग 10,000. महेंद्र से पैसा मंगवाया. देखो महेंद्र से कितना पैसा लेना था, देखो यहाँ पे दिया हुआ है. महेंद्र से बिजनेस को कितना पैसा लेना था? कैन यू ऑल सी दैट? 64 माइनस 40,000. आई थिंक 24 लेना था, लेकिन वो खाली 10,000 ला रहा है तो वो भी इंसॉल्वेंट हो गया इनडायरेक्टली. उसको लाना था 24 बट हो गया इंसॉल्वेंट. 10 ही ला रहा है. तो सिमिलर वर्किंग नोट में बनाऊंगा अभी इंसॉल्वेंसी ऑफ सेकेंड पार्टनर. इधर लिखूंगा मैं अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम महेंद्र. अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम महेंद्र इज डेबिट माइनस क्रेडिट. तो अभी महेंद्र का डेबिट माइनस क्रेडिट करना. महेंद्र के डेबिट में क्या है? 64,000 माइनस 40,000. 60 नहीं बेटा, which comes to 24,000. ओके 24,000 इसकी डेफिसिट है. अभी ये कुछ ला रहा है कि नहीं घर से चेक कर लेने का एक बार. इज ही गेटिंग एनीथिंग? तो यस ही इज गेटिंग. महेंद्र ब्रिंग्स, महेंद्र गेट्स और महेंद्र ब्रिंग्स फ्रॉम हिज होम पर्सनल एस्टेट. कितना लेके आया? 10,000 रुपए लेके आया है ना. तो क्या एंट्री करेंगे हम? 10,000 के लिए बैंक टू महेंद्र कैपिटल नॉर्मली जो करते हैं ना. तो बैंक टू महेंद्र कैपिटल. महेंद्र कैपिटल में बाय बैंक 10,000 और बैंक में टू महेंद्र कैप 10,000. तो जो 10,000 लेके आया वो 10,000 कर लिया हमने खत्म यहाँ पे रिकॉर्ड करके. अब कितना और लाना है? अब कितना लाना है? उसको 14,000 लाना है. ये हो गई नेट डेफिशिएंसी ऑफ महेंद्र. ये हो गई नेट डेफिशिएंसी ऑफ महेंद्र. जरा दिमाग लगाना. Who will share this? Will be shared by देवेंद्र. देवेंद्र and नरेंद्र both या only देवेंद्र? No, only Only Dev. ओनली देवेंद्र. देवेंद्र. नहीं तो क्या है? एंड लूप, एंडलेस लूप में घुस जाओगे तुम. हर एक इंस्टॉलमेंट का दो पार्टनर शेयर कर रहे हैं, फिर कोई इंस्टॉलमेंट हुआ उसका दो शेयर कर रहे हैं, फिर कोई इंस्टॉलमेंट हुआ. ये क्या ऐसा कोई पॉसिबल है? वो बेचारा तीसरा पार्टनर तो बंद हो गया है. कौन बंद हो गया है यहाँ पे? अपना नरेंद्र तो बंद हो चुका है ऑलरेडी. नरेंद्र इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस. उसको रवाना कर दिया डेफिसिट शेयर पे. बोला टाटा बाय बाय सी यू, तेरे से कोई पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं है. अब दो ही पार्टनर बचे थे बिजनेस में, महेंद्र और देवेंद्र. महेंद्र उठ गया ऑब्वियसली, तो उसका डेफिसिट कौन शेयर करेगा? देवेंद्र शेयर करेगा. अभी यहाँ पे आपको पीएसआर का भी लफड़ा नहीं है. पूरा का पूरा 14 का 14 देवेंद्र को ही शेयर करना है. तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, बता सकते हो यहाँ पे?
देवेंद्र टू टू महेंद्र महेंद्र देवेंद्र टू महेंद्र, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट, देवेंद्र टू महेंद्र, 14,000 तो करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे दोनों में मार दो, देवेंद्र टू महेंद्र, तो देवेंद्र में टू महेंद्र कैप 14,000, देवेंद्र कॉलम, इसके कैपिटल को कम कर दो और महेंद्र में आएगा बाय देवेंद्र कैप, बाय देवेंद्र कैप 14,000 and that's it. I think the Mahendra's account will automatically self tally on 64,000. महेंद्र भी सेल्फ टैली हो रहा है 64 पे, प्लीज चेक कर लो। दो पार्टनर सॉल्वेंट होके बंद हो चुके हैं, बच्चा एक ही पार्टनर बचा है बेचारा जो सॉल्वेंट है, जिसके घर पे पैसा है। तो कौन है वो बंदा है अपना देवेंद्र। तो देवेंद्र अपना बाहुबली बच गया। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या आएगा, सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है देवेंद्र का, डेफिसिट आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, देवेंद्र इंसॉल्वेंट है कि सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट। देवेंद्र तो भैया पूरा पक्का सॉल्वेंट है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसके घर पे बहुत पैसा है, ये लेके आएगा। टोटल बताओ मुझे डेबिट का कितना आ रहा है? 1,36,000 1,36,000 ये हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट, और बैंक में टू देवेंद्र 56 and your balance sheet should, cash account should tally on 2,02,000. Very simple problem, only one adjustment was different. Tell me if you did not understand any part. I'll explain once again. Any of you? सर ये मेथड राइट है कि रॉन्ग है? आप बोल रहे थे रॉन्ग है, समझा? Wrong in the sense, not completely wrong. क्या होता है जब आपका बिजनेस बंद होता है, डिसॉल्व होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, आपको एडवांस में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन यू कम टू नो ना हु इज इंसॉल्वेंट एंड हु इज सॉल्वेंट। सो दोनों जन साथ में आके बोल देंगे भैया हम लोग दोनों इंसॉल्वेंट है, ऐसा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सिंगल पार्टनर ही दोनों की डेफिसिट एक साथ उड़ा देता है। यहाँ पे अपने को मालूम है कि दोनों इंसॉल्वेंट है। कौन? मिस्टर नरेंद्र एंड मिस्टर महेंद्र। वी कैन पास अ कंबाइन, जो पैसा है ले लो, सीधा फिर देवेंद्र टू महेंद्र टू नरेंद्र, ऐसा। यहाँ पे क्या दिया आपको, एक महीने में एक आया होगा, बोल रहे हैं सब कुछ एक दिन में हो रहा है। मतलब सवेरे आया नरेंद्र, बोला मैं इंसॉल्वेंट हूँ, शाम को आया महेंद्र, बोला मैं इंसॉल्वेंट। तो पहले नरेंद्र का इंसॉल्वेंसी दोनों ने शेयर किया, और फिर आगे जाके महेंद्र की इंसॉल्वेंसी एक ने शेयर किया। ऐसा भी हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। एक महीने में एक आया, फिर एक दो महीने बाद दूसरा इंसॉल्वेंट होता है, ऐसा पॉसिबल है, बट रेयर सिचुएशन। नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ द सिचुएशन में आपका दोनों पार्टनर साथ में ही आ जाएंगे, हम लोग दोनों इंसॉल्वेंट है, या तीन पार्टनर साथ में आए, हम लोग तीनों इंसॉल्वेंट है, एक पार्टनर शेयर्स द डेफिशिएंसी टुगेदर। ऑलराइट, ये थोड़ा फ्लॉ है, नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग बट थियोरेटिकल कंसेप्ट है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस बंद क्यों होते हैं, तो ड्यू टू लॉसेस के बिना 99% ऑफ द बिजनेस गेट शट डाउन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी और लॉसेस। यहाँ पे आपने पहले 26 प्रॉब्लम जो किए हैं उसमें सब सॉल्वेंट थे, सब सॉल्वेंट पार्टनर्स थे, फिर भी हम लोग ने बिजनेस बंद कर दिया। ऐसे बिजनेस बंद बहुत कम होते, इंसॉल्वेंट या लॉस मेकिंग बिजनेस ही बंद होते, बराबर है। वो थियोरेटिकल है, तो you'll have to learn. Got it? तरीका समझा इंसॉल्वेंसी का? जो ऑर्डर में दिया वही ऑर्डर में जाना प्रॉब्लम का, ये आपका खाली ध्यान रखना। प्रॉब्लम जो ऑर्डर में पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं वो ऑर्डर में उनको निपटाओ। तरीका वही है, डेबिट माइनस क्रेडिट। पैसा ला रहा है तो ले लो, नहीं ला रहा है डिवाइड कर दो पीएसआर में, एंट्री कर दो, खत्म करो उसको। फिर दूसरे पार्टनर को पकड़ो, डेबिट माइनस क्रेडिट करो, ला रहा है एंट्री करो, नहीं ला रहा है सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट, खत्म करो। फिर तीसरे को लो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इज दिस पार्ट क्लियर? बोलो, एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड एनी पार्ट, एनी एंट्री? सर पूरे फॉर्म का होगा तो उसमें भी ऐसा ही होगा ना? नहीं, ऐसा तीसरे का नहीं, वही पूरे फॉर्म का ये लोग ने बराबर से दिया हुआ है, प्रैक्टिकली जैसे होता है हम लोग करेंगे, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी।
जैसे होता है वैसे ही दिया एग्जैक्टली पूरे फॉर्म का जैसे होता है विल डू दैट. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लो ऑन द सेम लाइंस. कम टू पेज नंबर 249, standard textbook page 249, question 10. Standard textbook page 249, question 10. Standard textbook page 249, question 10. मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग भी ट्राई करो. कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में सबके? वंशी कामदार, पार्श्व, रिया, इशिता, शिखा, और फिर गॉट इट. कैसे करना है? स्टेप बाय Yes. स्टेप जाना है. जानवी को समझा, नितिशा, जश दोषी, कंफर्टेबल. ट्राई करना है. मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करो. कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ लो, कॉपी मत करना, ठीक है? आंसर टैली कर लेना. क्वेश्चन नंबर 10 पेज 249. क्वेश्चन नंबर 10 पेज 249. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करने वाले हैं ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी. ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी इज एन इम्पोर्टेंट वन. सिंगल पार्टनर, ऑल पार्टनर, करंट अकाउंट टाइप्स, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस. ये टू पार्टनर, very very rare chance, negligible chance of coming actually. In the books of Shweta, Nupur and Sanika. लोन अकाउंट नहीं है, नहीं है. Shweta, Nupur and Sanika. Guys can try. I'll also solve it. Page 249. Standard textbook. अभी इधर टू सन्ड्री एसेट्स ही दे दिया है, तो सन्ड्री एसेट में वापस सन्ड्री एसेट्स लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली टू सन्ड्री एसेट्स 160 लिख सकते हो.
श्वेता कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कैन यू ऑल सी दैट? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एंट्री वोंट बी टू बैंक, ये समझ आया? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वे पेड बाय श्वेता, पार्टनर ने पे किया टू श्वेता कैपिटल, पार्टनर पे कर रहा है, हम लोग पार्टनर को दे देंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, इनडायरेक्टली टेक ओवर हो रही है। And then Nupur and Sanika are both insolvent. Nupur's private estate got a surplus of 3 and Sanika got 8. पहले नुपुर को बंद करना, फिर सानिका को। सर पर इसमें तो दोनों का एक साथ दिया है ना, दोनों बता रहे। नुपुर, हाँ पहले, लेकिन ऑर्डर में कौन है? नुपुर है ना। पर आपने तो बोला कि दोनों साथ में हो गया तो अपने को दोनों का हाँ, साथ में आंसर भी सेम आएगा, लेकिन ऑर्डर में ही जाना है, साथ में मत उड़ाना। थियोरेटिकली तुमको नहीं करेंगे वो लोग फॉलो, ठीक है? पहले नुपुर को बंद करना, फिर सानिका को बंद करना। सर कैश वाली एंट्री क्लब कर सकते हैं? कैश वाली एंट्री भी कर सकते हो, बैंक टू नुपुर टू सानिका, बट बेटर है पहले अलग अलग ही खत्म करो, उसको भी अलग करो। नुपुर का पूरा खत्म करो, पैसा लो, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट खत्म करो, फिर सानिका का पैसा लो, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट, ठीक है? क्रेडिटर का नहीं आएगा, क्रेडिटर्स का क्या नहीं आएगा? क्रेडिटर्स का। अरे टू रह गया, बैंक। हाँ, क्रेडिटर्स रह गया पे ऑफ करने के 95। सर आपने बैंक का बैलेंस नहीं लिखा है। ठीक है, टोटल बिल चेंज 7 जी 76 का लॉस आ रहा है क्या? चेक करो। सर 66 का लॉस, 57 का है सर। कितने का लॉस आ रहा है? 66 66 फिगर टोटल राइट है 257। हाँ अच्छा, हाँ ओके। श्वेता टोरेंस आने का PSR 3-1। क्वेश्चन में ऑर्डर में देख लेना, जो ऑर्डर में दिया वही ऑर्डर में जाना। नुपुर पहले उड़ाना उसको, फिर सानिका, पहले नुपुर देन सानिका, ठीक है? पहले नुपुर का पूरा प्रोसेस खत्म कर देना आराम से।
This is Nupur. Debit minus credit, 22 minus 15, which is 7,000 less Nupur brings. Nupur कितना पैसा लाई चेक कर लेना, 3,000. तो 7 लेना था, 3,000 लाई, 3,000 का एंट्री कर देना बैंक टू नुपुर, बाय बैंक. सर इसमें जर्नल है? नहीं, इसमें जर्नल की जरूरत नहीं है. नीड इज देयर, देन रिवीजन के वक्त विल डू इट. सर नेक्स्ट सम कौन सा है? वेट, आई विल टेल यू. हो गया क्या पूरा खत्म? वेट. बैंक टू नुपुर कैपिटल, $3,000. This is net deficiency of Nupur will be shared by Shweta and Sanika in PSR. What is the PSR between Shweta and Sanika? 3:1. 3,000, 1,000. सर सारिका को भी इंसॉल्वेंट बोला है, तो सारिका में क्यों शेयर करेंगे हम लोग? मैंने तुमको बोला क्या? अभी तो किया हमने. ऑर्डर में जाना. फिलहाल नुपुर इंसॉल्वेंट हुई है. फिलहाल नुपुर इंसॉल्वेंट हुई है तो अपने को क्या देखने का कि श्वेता और सारिका सॉल्वेंट है. श्वेता और सारिका उसको शेयर कर देंगे लॉस को. फिर जब सारिका से पैसा लेने का आया सानिका से, उसने बोला मेरे पास भी पैसा नहीं है, उसको इंसॉल्वेंट कर दो. गो इन द सेम ऑर्डर. पहले नुपुर इंसॉल्वेंट, खाली नुपुर को देखो. नुपुर गई, नुपुर का इंसॉल्वेंसी खत्म कर, जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर है सब में बांट के. फिर सानिका को पकड़ो, उसका इंसॉल्वेंसी बाद में वापस, रिमेनिंग पार्ट. क्लियर? ऑर्डर वाइज आ रहे हैं वो लोग. दोनों साथ में इंसॉल्वेंट नहीं हुए. पहले नुपुर हुई, फिर थोड़े टाइम बाद सानिका हुई. ऐसा हो. श्वेता, सानिका टू नुपुर, 3, 1 and 4. यही मैं आपको बोल रहा था. प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिकली दोनों एक साथ उठ जाते हैं. तो सीधा जो एक बची हुई पार्टनर है श्वेता, श्वेता टू सानिका टू नुपुर, वो डायरेक्ट एंट्री आ जाती है. बट यहाँ पे थियोरी में ऑर्डर वाइज करना पड़ेगा आपको. लेकिन सर वैसा भी हो सकता है ना कि एक जो हुआ उसका पे करते करते दूसरा इंसॉल्वेंट हो गया. वही है यहाँ पे लॉजिक. वही तो है तो इसके. वो तो बाद में ही पता चलेगा ना. देखो, बाद में पता चलने का मतलब क्या है? अभी उसके पास घर पे इतना एसेट नहीं है ना. वो तो उसको पहले से पता रहेगा कि कितना इंसॉल्वेंसी, अप्रोक्सीमेट अमाउंट एंड ऑल. अभी समझो उसको शेयर करनी है यहाँ पे डेफिसिट सानिका को 1,000 रुपए. तो ये 1,000 5,000 का जो भी डेफिसिट का जो अंदाजा, ये तो उनको तभी पता चल गया होगा एट द टाइम ऑफ शेयरिंग द डेफिसिट. एंट्री करने के बाद पता चल, अरे बाप रे इतना बड़ा अमाउंट तो मेरे पास है नहीं. ऐसे एंट्री करने के बाद थोड़ी पता चलेगा. एट द टाइम ऑफ द प्रोसेस ओनली दे विल बी नोइंग. बट दैट इज द अजम्पशन व्हिच इज देयर ओवर हियर. शेयर करते करते इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिर बाद में दूसरा पार्टनर भी, वो एक का डेफिसिट शेयर करते करते दूसरा इंसॉल्वेंट हो गया, तो दूसरा भी इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसको तीसरा शेयर करेगा. दैट इज व्हाट इज द अजम्पशन वी आर फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप. फिलहाल सानिका इंसॉल्वेंट नहीं है. फिलहाल श्वेता एंड सानिका बोथ आर सॉल्वेंट. दोनों ने नुपुर का डेफिसिट शेयर कर लिया. उसके बाद सानिका से पैसे मंगवाए तो उसके पास नहीं थे, तो सानिका इंसॉल्वेंट हो गई. उसका डेफिसिट श्वेता ने शेयर किया. ठीक है, वो इन द सेम ऑर्डर.
फिलहाल इट विल बी श्वेता सानिका टू नुपुर, श्वेता टू नुपुर, और मैं बाय श्वेता, and Sanika to Nupur. मैंने नुपुर को खत्म कर दिया एंड देन दूसरी पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गई, तो उसका स्टोरी खत्म करते हैं. अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम सानिका. अभी सानिका का क्या करने का, डेबिट माइनस क्रेडिट, विच इज 21 plus 1, 22,000 minus 0, which is 22,000. बराबर है. सर वो 8,000 लेके आई. हाँ तो लिखूंगा ना यहाँ पे, लेस सानिका ड्रिंक्स 8,000. इसका एंट्री कर देते हैं हम लोग. बैंक टू सानिका, तो बाय बैंक सानिका कॉलम 8,000 and बैंक में टू सानिका कैप 8,000. And now the deficiency, net deficiency of Sanika will be shared by श्वेता. श्वेता अकेली शेयर कर रही है तो कोई पीएसआर का लफड़ा नहीं है. आपका एंट्री हो जाएगा श्वेता टू सानिका, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट 14,000. श्वेता टू सानिका सानिका में बाय श्वेता. सानिका भी खत्म, नुपुर भी खत्म. श्वेता को बंद कर दो. श्वेता का क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है. इसका सरप्लस आ रहा है 67 माइनस कितना आ रहा है, ये टू बैंक 17,000. 17,000. बैंक में हो जाएगा बाय रियलाइजेशन 17,000. सर बाय रियलाइजेशन नहीं आएगा ना. अरे अरे बाय श्वेता कैप, सॉरी, बाय श्वेता कैप. करस्पॉन्डिंग एंट्री 1,12,000 रुपये. आई थिंक इट टैलीज. बैठेगा दिमाग में. डबल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, गो इन द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन. जिसका नाम पहले है उसको पहले इंसॉल्वेंट का, भले साथ में दिया एंड दिया, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. ओके, इंग्लिश पे मत जाना. जो क्वेश्चन में पहले इंसॉल्वेंट हुआ उसका पूरा प्रोसेस खत्म करना. अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ऐसा है कि ऑर्डर में वो लोग इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, एक साथ नहीं हो रहे हैं. पहले एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, उसका डेफिसिट बाकी दोनों शेयर करते, तब तक दोनों सॉल्वेंट थे. फिर एक पार्टनर का खत्म होने के बाद पता चला कि दूसरा इंसॉल्वेंट है, तो तीसरा उसकी डेफिसिट शेयर करता. तो 4 पार्टनर है, अजय, विजय, संजय, राहुल. तो पहले राहुल इंसॉल्वेंट हुआ तो अजय, विजय, संजय विल शेयर द डेफिशिएंसी. फिर संजय इंसॉल्वेंट हुआ तो अजय, विजय विल शेयर द डेफिशिएंसी. फिर विजय इंसॉल्वेंट हुआ तो अजय विल शेयर हिज डेफिशिएंसी. ऑर्डर में जाने का, स्टेप बाय स्टेप इंसॉल्वेंसी अज्यूम करना. इज दैट क्लियर? प्रोसेस पूरा डिट्टो सेम है. बोलो, एनी डाउट?
अभी अपने शीट पे आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 29 पे आ जाओ सब लोग, अपना क्लास शीट, क्लास टेक्स्ट बुक, पेज 92, क्लास टेक्स्ट बुक पेज 92, क्लास टेक्स्ट बुक पेज 92. Okay. Class textbook page 92. Sun, Moon, Star were equal partners. देखा? Now, there are just two corrections in the sum. On the above date, they decided to dissolve the partnership firm and the result of realization, whereas under. दिख रहा है वहां पे? Sun agreed to take over premises at an agreed value of 5,000. Machinery realized 80% of the book value. Debtors 8,300. Furniture was given free of charge to office buy. Sundry creditors were paid 4,100 in full satisfaction of their claims. Hila? Then, whereas bills payable were discharged by Sun at the book value. Bills payable were discharged by Sun का मतलब क्या हुआ? टेक ओवर Sun ने take over किया. Sun ने take over किया. Realization expenses amounted to 1,100 which were met by Sun personally. तो Sun ने पे किया है तो क्या एंट्री होगी? टू सन To कैपिटल Sun cap. To Okay, Sun इधर cap. personally private confuse मत होना. कुछ भी दिया है मतलब पार्टनर पे कर रहा हूँ on behalf of business. बराबर है? So to realization capital. Realization to partner capital. Realization में to partner capital to Sun capital. Okay, 1,100 rupees. Star becomes insolvent and 7,000 could be recovered from his private estate. उसके आगे लिखना Moon also becomes insolvent. Moon also becomes insolvent. Moon also becomes insolvent. And nothing realized from his private estate. Moon also becomes insolvent and nothing realized from his private estate. Moon also becomes insolvent and nothing realized from his private estate. सर इतने करेक्शन किया अभी एक और करेक्शन है आपको मैं बता रहा हूँ. सन्ड्री क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ 4,100 दिया है, दिख रहा है आपको? सन्ड्री क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ 4,100. उसके जगह लिखना सन्ड्री क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ sundry creditors were paid off एक second. Sundry creditors were paid off 6,300 in full satisfaction of their claims. Sundry creditors were paid off 6,300 in full satisfaction of their claims. ठीक है? 6,300 in full satisfaction of their claims. करो. करंट अकाउंट के साथ वाला समय तो have capital as well as current. करंट अकाउंट के साथ करना है इंसॉल्वेंसी, याद है आपको? How to tackle with current account? Remember what extra step you need to do? All balances transfer to. All current account first you transfer to capital and then the same process. पहले करंट को उठा के कैपिटल में डाल दो, फिर आपका प्रोसेस रिमेन्स. सर फिर जो इंसॉल्वेंसी का कैश बैंक रहता है वो करंट में ही आएगा. इंसॉल्वेंट का जो कैश बैंक है वो मतलब जो एडजस्टमेंट. कैपिटल में आएगा. अच्छा, करंट को बंद कर देना है. जैसे रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस मिले, करंट को बंद करके कैपिटल में डाल दो. फिर सब बाय बैंक जो भी पार्टनर का
सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट है, सब कुछ कैपिटल, करंट में कुछ नहीं दिखेगा। ओके वो एक स्टेप एक्स्ट्रा है, करंट को बंद करके कैपिटल में डाल देने का। सिंपल करो, स्टार्ट करो। एक और करेक्शन करना, फर्स्ट पॉइंट में Sun agreed to take over premises and agreed value of 5,000. Machinery realized 80% of the book value and debtors at 2,300. Debtors realized 2,300. 8,300 का make it 2,300. 2,300. करो। तीन करेक्शन करवाया है मैंने, वापस रिपीट कर रहा हूँ। क्रेडिटर्स को हमने पे किया है 4100 के जगह 6300। डेटर्स से हमने रियलाइज किया है 2300 एंड मून हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। सर ये लास्ट सम है? सर इधर PSR PSR इज इक्वल इक्वल दिया है ना फर्स्ट लाइन। PSR is equal 1:1:1. Just do one more correction. Fourth point, star becomes insolvent दिया है ना वहां पे। Star becomes insolvent and 7,000 recovered दिया ना, just make it 1,000. Star becomes insolvent and 1,000 was recovered from his estate. 1,000 was recovered from his estate. सर
मून का बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस? Buy balance is 16,000 in the capital. Current में it is 1,000. सॉरी, द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल में 16 है और करंट में 1 है. सर इसमें फर्नीचर का कुछ नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया. मून का ना अभी शायद क्रेडिट बैलेंस आएगा, देख लेना सामने. सर जब हम लोग वो कैपिटल टू करंट ट्रांसफर, करंट टू कैपिटल ट्रांसफर करते हैं तभी सबका साथ में करेंगे तो चलेगा ना? सबका साथ ही में कर देने का. वैसे नहीं, मतलब हम लोग करते हैं ना सन करंट में बाई. अच्छा हाँ, वो बाय करंट, हाँ चलेगा. यस यस, कंबाइंड बाय करंट और टू करंट. यस, इंडिविजुअली किया तो बेटर है जर्नल के लिए खास, क्योंकि इंडिविजुअली तीनों अकाउंट है. लेजर में इट्स ओके.
सर टेक ओवर के वक्त करंट में लिखना। हाँ बोलो। सर या डेटर्स 8300 में गया है। मैंने करेक्शन करवाया ना 2300। अच्छा ओके। डेटर्स का 2300, क्रेडिटर्स का 6300 और स्टार का 1000 रुपया फाइनल जो घर से लाया वो। और बिल्स पेबल सन ने लिया है, टेक ओवर किया है। हाँ टेक ओवर हुआ है, सॉरी। सर 3100 आएगा ना? 3100 सन करंट। बराबर। बस हो गया। Anyone has calculated profit loss? 39,600। बैलेंस आ रहा है। हाँ क्रेडिट आ रहा है ना हाँ मून का। credit आ रहा है सर। हाँ सर, तो वो इंसॉल्वेंट कैसे होगा? इंस्टॉलमेंट है तो सर कैसे करें फिर उसका एडजस्ट? बट उसका डेफिसिट नहीं है। मतलब नसीब ना उसका। नसीब मतलब बिजनेस विल पे टू मून, समझा? हाँ। तो सर तो इसमें 2 बैंक आएगा और 2 पार्टनर्स कैपिटल आएगा। नहीं नहीं तो भाई, इंसॉल्वेंट है लेकिन बिजनेस को लेना नहीं है, बिजनेस को उसको पैसा देना है। इंसॉल्वेंट का मतलब प्राइवेट एस्टेट खत्म हो गया। तो अगर लाना होता तो वो नहीं ला पाता, तो हम लोग इंसॉल्वेंसी शेयर करते, समझा? सर तो इसमें तो सिर्फ 2 बैंक के आएगा ना खाली। वो बैंक खत्म। यही मैं बोल रहा था। सर क्रेडिट तो फिर वर्किंग नोट में क्रेडिट माइनस डेबिट दिखाना पड़ेगा ना? नहीं मेरे भाई, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिजनेस को उसको पैसा देना है ना। सर तो नॉर्मल समय हो गया ना एकदम। नॉर्मल मतलब सिंगल पार्टनर जैसा हो गया इंसॉल्वेंसी, समझा? सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी जैसा हो गया। मून से अगर लेना होता तो डेफिसिट आता, बाय बैंक और फिर सेटल करते। मून से लेना होता तो, लेना तो है ही नहीं, देना है उसको। देना है तो क्या टेंशन है, दे दो जितना पैसा देना है। सर डेबिट ही पड़ा है ना। मून का नहीं सर क्रेडिट आ रहा है। क्रेडिट आएगा, देखो क्रेडिट आएगा, वही बोला स्टार्टिंग में। मेरे को बोलो यहाँ का क्या आ रहा है टोटल रियलाइजेशन का। 39,600। 39,600 और प्रॉफिट आ रहा है लॉस ऑफ 10,300 15,300 15,300। इक्वल ही है ना। 5100
करंट में जाएगा ये भी। अभी पहले तो करंट बंद करके तुरंत डाल दो पूरा कैपिटल में। दिस इज 10,003, 12,100 by sun cap 7 और 2 sun current 7। मून का है 7,100 6,100 by moon cap 2 moon current एंड स्टार का है 7,100 by स्टार कैप। सर स्टार का बैलेंस भी है ना 13,000। हाँ सर। करंट का बैलेंस हाँ, लिखा था 13,000 मैंने। है। ओके ओके ओके। टू बैलेंस बीडी 13,000 है, तो चेंज हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? 20,100। 13 plus 18 20,100। ठीक है, तो इधर आ जाएगा। 3,000 है ना बैलेंस की, 13 है। स्टार का बैलेंस 13 है भाई, बराबर है, करेक्ट है। एंड टू स्टार करंट 20,100। सर ऐसा टाइप का सम आ सकता है? नहीं, ऐसा टाइप का मतलब टू पार्टनर इंसॉल्वेंसी ना। सर ये मून का आपने बोला ना। क्रेडिट बैलेंस हम्म। नहीं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है खाली। टू पार्टनर इंसॉल्वेंसी का भी चांस नहीं है ऐसा। देखो अभी कैपिटल में जाके बंद करो, पहले कौन इंसॉल्वेंट हुआ? तो पहले स्टार हुआ और 1,000 रुपया आया वहां से, तो वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं स्टार का। अमाउंट टू बी सर छोड़ो ना वर्किंग नोट, फटाफट कर डालो ना अभी। रिसीव्ड फ्रॉम स्टार। अरे पापा तेरा हो गया है, बाकी लोग को करने दे अच्छे से। सर 9050 9050। हाई मत करो भैया, जाने का नहीं, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है अभी। अरे सर क्या ऑब्जेक्टिव अभी? अरे 20,100 minus 1 19,100. The star brings 1,000. तो स्टार में आ जाएगा बाय कैश एंड टू स्टार कैप is the net deficiency shared by sun and moon in BSR. इक्वली है ना, तो 9050 सन मून टू स्टार, सन टू स्टार, स्टार में बाय सन, मून टू स्टार,
and star में I moon. Star is finished. Now moon is also finished. Okay, but moon का देखो आपको क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कि डेबिट बैलेंस आ रहा है मून में? क्रेडिट। मून में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 16,000 ऑन द क्रेडिट साइड माइनस कितना आ रहा है 15,100. तो कितना आता है 15,150. 850 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उसका. कैन यू सी दैट 850 रुपीज आ रहा है ये साइड. चेक. यस। 850. अभी मुझे ये बताओ ये 850 उसका सरप्लस है कि डेफिसिट है? सरप्लस. सरप्लस है. मतलब बिजनेस हैज टू पे हिम और बिजनेस हैज टू रिसीव फ्रॉम हिम. Pay him. अगर वो Pay him. अभी तो वो इंसॉल्वेंट है, क्वेश्चन में है इंसॉल्वेंट है, पर उससे अगर पैसा लेना होता तो तकलीफ कारक होती ना. अभी उससे लेना नहीं है, उसको क्या है देना है. देने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको. आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्राइवेट एस्टेट उसका खत्म हो चुका है. अगर उससे पैसे मंगवा दे तो नहीं होता, तो फिर इंसॉल्वेंसी फिर डेफिशिएंसी शेयर करना पड़ता. अभी इंसॉल्वेंट है लेकिन देने का तो टेंशन नहीं है, देने का तो कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है. डेफिशिएंसी है ही नहीं तो शेयर क्या करोगे? इज दैट क्लियर? देना है तो उसको राजी खुशी दे दो, रवाना करो. सो टू कैश अकाउंट 850 रुपीज. ओके. एंड सन का आई थिंक सरप्लस ही आ रहा है. टू कैश साथ में ही कर सकते हो दोनों का इधर. सन का भी कितना आ रहा है सरप्लस? 16,050 3950 3950 and 850. So buy sun cap and buy moon cap. Got it? Write down a note. That's your solution. नहीं तो घाई घाई में पब्लिक क्या करता है, इधर क्रेडिट बैलेंस आया तो भी शेयर कर देता है. अबे भैया क्रेडिट बैलेंस है तो क्यों शेयर कर रहे हो? तो पैसा लेना नहीं है, लॉस नहीं है बिजनेस का, उसको देने का है. देने का है, फिर उसका पर्सनल एस्टेट कुछ भी टूट जाए क्या प्रॉब्लम है? बिजनेस विल पे दैट मच मनी. इज दैट क्लियर? राइट डाउन. Moon, though being insolvent, Moon, though being insolvent, Moon, though being insolvent, has credit balance. Moon, though being insolvent, has credit balance in his capital account. Moon, though being insolvent, has credit balance in his capital account. Moon, though being insolvent, has credit balance in his capital account. Therefore, business will pay required amount to Moon. Therefore, business will pay the required amount to Moon. Therefore, business will pay the required amount to Moon, and there is no need of deficiency sharing. And there is no need of deficiency sharing. And there is no need of deficiency sharing. ऑब्जेक्टिव्स ले लो फटाफट फाइनल अकाउंट्स का.
That was your two partner insolvency. More than enough. Okay, 2 to 3 problems you go through and that's it. इसमें जर्नल की जरूरत नहीं है. सिंगल पार्टनर में भी जर्नल का आने का चांस कम है. सेफ साइड के लिए वी हैव डन सिंगल पार्टनर, टू पार्टनर, ऑल पार्टनर. इसमें जर्नल नहीं आएगा, इसमें लेजर ही आने का चांस है. ऑल पार्टनर में भी जर्नल का चांस नहीं है. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लो फटाफट. फाइनल अकाउंट्स. के ऑब्जेक्टिव्स वी वर डिस्कसिंग. सर मेरा लेक्चर है, मैं लीव करूं? कौन है? मैं कॉलेज है. पार्श्व. ठीक. हाँ. सर पेज 51. Yeah. Page 51. देखते जाओ. C, true or false? दो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे, तीसरा है ये. ओके. पार्टनरशिप फर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. बोलो ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. पार्टनरशिप फर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. फॉल्स. पार्टनरशिप के एक्ट में ही दिया हुआ है कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है, पार्टनरशिप बिजनेस करना है, तो यू नीड टू मेक प्रॉफिट्स. आपको प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस या फिर ट्रेडिंग ओरिएंटेड जाना पड़ेगा. ओके. नॉन ट्रेडिंग एनजीओ आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते, उसको आपको अलग एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा. लाइक ट्रस्ट एक्ट, बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. पार्टनरशिप आप नहीं बना सकते. पार्टनरशिप का सोल मोटिव ट्रेडिंग या प्रॉफिट ही होना चाहिए. कीप दैट इन माइंड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. False. False. What type of account it is? Nominal. Nominal. Carriage inward is carriage on purchases. True. True. Carriage inward is carriage on purchases. True. Goods को खरीदने का खर्चा है. Adjustments are recorded in partner's current account in fixed capital method. True. True. Prepaid expenses are treated as liabilities. False. Assets. If partnership deed is silent, partners share profits and losses in proportion of their capitals. Equal आएगा. False. False. Balance sheet is an account. False. False. What is balance sheet? Statement. 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 एक दिन पे आपको पूरी वैल्यू दिखाता है बिजनेस, उस पर्टिकुलर डे की वैल्यू दिखाता है, पूरे साल का रिजल्ट नहीं दिखाता. उस दिन आपके बिजनेस की क्या वैल्यू है वो डिस्क्लोज कर देता है. Wages paid for installation of machinery is a revenue expenditure. False. False. What type of expenditure it is? Capital. Capital. Long term on fixed assets. Income received in advance is a liability. True. Advance में आ गया है, benefit देना बाकी है. RDD is created on creditors. False. Debtors. Depreciation is not calculated on current assets. True. True. Depreciation कौन से assets पे calculate करते हो? Fixed Fixed asset.
क्यों? फर्नीचर है, 10 साल टिकेगा बिजनेस में, तो 10 साल का थोड़ी दिखाओगे पीएनएल में, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके दिखाओगे ना डेप्रीसिएशन। करंट एसेट का तो यार लाइफ ही 1 साल होता है, उसको कहाँ डेप्रीशिएट करोगे? तो करंट एसेट्स आर नेवर डेप्रीशिएटेड, ओनली फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रीशिएटेड। गॉट इट? Goodwill is an intangible asset. True. Indirect expenses are debited to trading account. False. किस अकाउंट में डेबिट होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? PNL. बैंक लोन इज अ करंट लायबिलिटी. बैंक लोन इज अ करंट लायबिलिटी. सर करंट का मतलब जो हर साल होता है वो? हर साल नहीं, 1 साल के अंदर पे करना. जैसे करंट एसेट 1 साल के अंदर पैसा आ जाएगा ना, करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर चुकाना पड़ेगा. बट मैं आपको बोलूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी. True. Credit are current liability. True. Bills payable are current liability. True. Bank loan is not a current liability. It is fixed liability, long term. Capital is a fixed liability, long term. 1 साल से ज्यादा. Business जो liability 1 साल के ज्यादा में चुकाता है, they are all fixed liability. Net profit is debit balance of profit and loss account. False. क्रेडिट बैलेंस. क्या तुम लोग? What do you mean by debit balance? Debit is greater than credit. तो उसको क्या बोलते हैं मेरी माँ? हाँ. नेट लॉस. तो नेट प्रॉफिट दिया है सर, हम लोग बराबर बोल रहे हैं सर अरे हाँ. सर. हाँ क्या? आज आप लीड Net में हो profit is debit सर, क्या balance. बोल रहे हो? सर उपवास किया है, बहुत भूख लगी है. सर चढ़ सब गई है. वापस करो. अटैक कर रहे हो सर? Okay, chalo. I was testing, paying attention on that. Very good. All are attentive. Okay. So अच्छा डायलॉग मारा. debit balance of P&L account, that is false. Net loss is the debit balance. Net profit is the credit balance. Okay. So net profit is the debit balance, that is false. Perfect. Find the odd one out. Odd one देखो अभी. Salary. Salaries, royalty, import duty. Salary. सैलरी. Why? सैलरी. PNL में जाता है, बाकी सब ट्रेडिंग में. Bash. Postage, stationery, advertising and purchase. Purchases. Why? Purchase. सेम. Direct and indirect expense. Capital, bills receivable, reserve fund, bank overdraft. बिल्स रिसीवेबल. Receivable. Why? बाकी सारे लायबिलिटीज है. बाकी सब liabilities है, bills receivable asset है. Perfect. Building machinery, furniture, bills payable. बिल्स पेबल. And liability. Discount received, dividend received, interest received, depreciation. Depreciation. Complete the following sentence. Partner share profits and losses in dash ratio in the absence of partnership deed. इक्वल. इक्वल. Registration of partnership is dash in India. Not compulsory. Not compulsory. Not compulsory. Or you can write optional भी चलेगा. Optional या not compulsory. Partnership business must be dash. Trading concern. Yes, trading concern true. Trading concern होना चाहिए and lawful होना चाहिए. Okay, partnership business must be lawful and trading concern. दोनों आना चाहिए. Actually question बराबर से frame नहीं किया है. Partnership business must be a trading concern and must be lawful. का definition में दिया है. Partnership is a lawful business. Okay, carried on profits, carried on by all or one of them acting for all. Lawful profit making concern, trading business. Liabilities of partners in the partnership firm is dash. Unlimited. Unlimited है. हाँ. और भी कुछ है. तीन प्रकार की लायबिलिटी होती थी पार्टनरशिप. अनलिमिटेड तो है ही. Joint several. हाँ, joint, several and unlimited. Joint, several and unlimited. Joint, several and unlimited. Unlimited.
joint, several and unlimited. Is that clear? Joint, several and unlimited. The balance of drawings account of a partner is transferred to his dash account under fixed capital method. करंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ड्राइंग्स कहाँ ट्रांसफर होता है? करंट करंट Partner's current. Interest on capital of a partner is debited to dash account. Debited to dash account. Debited. PNL. Profit and loss. Profit and loss. Partners are liable. Partners are dash liable for the debts of the firm. Partners are dash liable for the debts of the firm. Jointly. Jointly and severally. Jointly. Jointly and severally. Partners are jointly and severally. Jointly and severally. Jointly and severally. Partnership deed is a dash of partnership. Partnership deed is a dash of partnership. Agreement. Agreement. Partnership deed is a dash of partnership. Agreement. Is that clear? The withdrawal by partner for business for personal use from the firm is dash to his account. Debited. 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 Drawings are debited to his account. सर वो joint और several है ना? Partners are joint and several liable. Jointly and severally. Jointly and severally liable. Partners are jointly and severally liable for the debts of the firm. मतलब इंडिविजुअल तो है ही, किसी और ने डिसीजन ले लिया तो भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा. Commission payable to the partner is a dash to the firm. expense Commission payable to the partner is an expense to the firm. Expense to the firm. When partners adopt fixed capital method, then they have to operate a dash account. current Current या current. Current account. 12th one. If partners current account shows dash balance, it is shown on the liability side of balance sheet. credit कौन सा बैलेंस दिखेगा? करंट में तो लाइबिलिटी में जाता है. debit balance क्रेडिट अरे सर. मतलब नहीं सर, डेबिट बैलेंस. डेबिट. हाँ debit अरे भाई, partners current account shows dash balance, then it is shown on the liability side of balance sheet. credit is credit balance Credit balance. हाँ टू बैलेंस सीडी आता है तो लाइबिलिटी में लिखते हो ना. टू बैलेंस सीडी का मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है. क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट. बैलेंस का डेफिनेशन मालूम है? बेसिक याद रखने का. ऑल लाइबिलिटीज हैव गॉट क्रेडिट बैलेंस, ऑल एसेट्स हैव गॉट डेबिट बैलेंस, ऑल एक्सपेंसेस हैव गॉट डेबिट बैलेंस, ऑल इनकम्स हैव गॉट क्रेडिट बैलेंस. ओके, बेसिक. सो करंट अकाउंट शोस क्रेडिट. कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, करंट का क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी में दिखता है. डेबिट बैलेंस एसेट में दिखता है, क्योंकि वो पैसा लेना बाकी है पार्टनर से. डेबिट बैलेंस ये देना बाकी है. तो क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी में दिखेगा. द एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस या ट्रेड एक्सपेंस भी बोलते हैं उसको. ट्रेडिंग पर्पस वाला डायरेक्ट या फिर ट्रेड एक्सपेंस. डायरेक्ट या फिर ट्रेड एक्सपेंस या ट्रेडिंग एक्सपेंस वो भी चलेगा. Cash receipts which are recurring in nature are called as Revenue receipts. revenue receipts. Very good. Recurring in nature are revenue receipts. So non-recurring in nature are Capital. capital receipts. Capital receipts. Non-recurring receipts are called capital receipts. Can you give me an example of capital receipt? जो एक बार पैसा मिलता है लमसम में आपको. सर एडवर्टाइजमेंट करके डिफर्ड End of asset. एक्सपेंस नहीं, रिसीट. पैसा आ रहा है, रिसीट. सर सर वो एक्सपेंस किया फिर आया ना पैसा. कुछ भी एक्सपेंस तो तूने एक साथ 4 साल का कर दिया है, फिर हर साल सेल्स होगा. सेल्स तो रेवेन्यू रिसीट है. ट्रेडिंग क्रेडिट और पीएनएल क्रेडिट में जो आइटम दिखता है सब रेवेन्यू रिसीट है, हर साल मिलने वाली आइटम्स.
जो नॉन रिकरिंग इनकम नहीं बोल रहा हूं मैं, रिसीट बोल रहा हूँ, रिसीट। रिसीट मतलब पैसा आना, जो लमसम पैसा आता है आपको, हर साल नहीं आता, उसको Sir, sale of assets. Sale of asset is an example of capital receipt. Perfect. Loan taken is an example of capital receipt. Capital introduced by owner is an example of capital receipt. जो लमसम आता है, एक साथ आता है, ओके, घड़ी घड़ी नहीं आता, दैट इज कैपिटल रिसीट। ये कंसेप्ट पूरा डिटेल में हम लोग करने वाले हैं एनपीओ में, कैपिटल रेवेन्यू का एकदम क्लियर हो जाएगा तभी सब कुछ। तो ये है अपना रेवेन्यू रिसीट, जो हर साल, रिसीट और इनकम में फर्क है, ये याद रखना। रिसीट और इनकम, रिसीट मतलब रोकड़ा आना, कैश अकाउंट में जो दिखता है ना रिसीट, वो रिसीट होता है। सेल्स का रिसीट, सेल ऑफ एसेट का रिसीट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का रिसीट, सेल ऑफ फर्नीचर, बैंक लोन का रिसीट, कैपिटल का रिसीट, ये सब रिसीट होता है। इनकम मतलब जो आप हर साल रेवेन्यू इनकम अर्न करते हो, वो इनकम होती है। अब हर साल रिकरिंग इनकम है तो उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। लमसम में आई हुई इनकम है, एक साथ आई हुई इनकम है। पार्टनरशिप फॉर्म में कोई लमसम इनकम है नहीं, एनपीओ में बहुत दिखेंगे आपको, तो दे आर कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट। एंट्रेंस फीस आएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस आएगा, लेगेसीज आएगा, ये सब कैपिटल रिसीट है। लमसम आने वाली रिसीट, एक साथ आने वाली रिसीट है कैपिटल रिसीट, ये याद रखना। रिटर्न they are shown on the liability part. Capital receipt are shown on the liability part. Revenue receipt are shown in trading and P&L credit. Return outward are deducted from purchases. Expenses which are paid before the due date are called as Prepaid. paid expense. Assets which are held in the business for a long period. Fixed assets. Fixed asset. Trading account is prepared on the basis of Direct expense. direct expenses. क्या trade expense चलेगा? ट्रेड एक्सपेंस यहाँ पे नहीं चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए खाली डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग रिलेटेड बोल रहा है तो ट्रेडिंग रिलेटेड है तो ट्रेड एक्सपेंस, ओके। When commission is allowed to any partner, it is dash of the business. Expense. Expense. When goods are distributed as free sample, it is treated as dash of the business. Advertisement. Advertisement. expense. Advertisement expense of the business. Advertisement expense. वन सेंटेंस हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। होमवर्क आ जाएगा, कल शाम तक सबमिट करना। कुछ डाउट है तो वेट करो, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा। सन्ड्री रिसीट्स क्या होता है? सन्ड्री रिसीट्स जैसे सन्ड्री एक्सपेंस होता है ना, छोटे अमाउंट का एक्सपेंस, हाँ, जैसे सन्ड्री रिसीट होता है। रद्दी बेचा, स्क्रैप बेचा, याद है सन्ड्री इनकम पेटी कैश में करते थे, वो सन्ड्री रिसीट एक ही चीज। सर ये जो मिसलेनियस रिसीट बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट वो जो एक साथ मिलता है वो लमसम रिसीट्स है ना? मतलब लमसम मतलब उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं, एक साथ जो मिलता है कैपिटल। एग्जांपल्स क्या है कैपिटल? अभी तो बोला, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, लोन टेकन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये पैसा जो आपको आता है लमसम, ये हर साल नहीं आएगा ना, वन टाइम आता है ना, लॉन्ग टर्म में एक बार। और ये रेवेन्यू रिसीट मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, वो सब ट्रेडिंग पीएनएल क्रेडिट में जो दिख रहा है सब रेवेन्यू रिसीट है, हर साल आने वाला। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल्स इनकम, सब रेवेन्यू रिसीट। ओके सर, बाय सर। ऊपर लो ना थोड़ा। अच्छा आंसर्स, ओके। सर गुडविल इज एन इंटेंजिबल